Hello students, welcome you all. Next topic is how to get access to the internet. To use the internet, you need an internet connection. How you can use the internet? First of all, you need an internet connection. Internet connections are provided by internet service providers. Who provide internet connections? Internet service provider ISP. And what are the various ISP like Bharat Sanchar Nigam Limited, BSNL, Airtel, MTS, Vodafone, Tata Docomo, all these are ISP who provide internet services. So what is ISP? Internet service provider. ISP stands for internet service provider. An internet service provider is an organization which provide you with access to the internet via a dial-up like modem or direct like wired or wireless connection. Internet service provider is basically a company or an organization that provide you the internet connectivity via dial-up like modem or direct hand wired or wireless connections. Choosing connectivity basically depends upon the availability of the particular technology, speed and connection type in your area. You can check that which connection is better in your area according to the technology, speed and connections type. Next is what is modem? A modem is a device that converts digital computer signals into a form analog signals that can travel over phone lines. So modem, modulator and demodulator. It's the full form of modem, modulator and demodulator. Modem stands for modulator and demodulator. It is a device that converts digital computer signals into analog signals and that can travel over phone line. It also reconvert analog signals into the digital signals. Now what are the types of common internet connectivity? Dial-up is a wired connectivity. DSL, digital subscriber line, is also wired connectivity. Cable internet access is a wired connectivity. So dial-up, DSL, cable internet access, all these are wired. All this requires wires. But 3G, 4G, WiMAX, Wi-Fi, all these are wireless connectivity. So you all have to know about this, which is the wired connectivity technology and which is the wireless connectivity. Some of the commonly used internet connectivity are: first is dial-up. Dial-up internet access is a form of internet access that uses the facilities of the public switch telephone network to establish a connection to an internet service provider via telephone lines using a device called modem. Users dial a particular number provided by the ISP and gain access to the internet. As you know students, dial-up is a wired connectivity and it uses the public switched telephone network to establish a connection, and it also requires telephone lines using a device called modem. Users dial a particular number. After that, they are connected to the internet. And who provide this particular number? This is provided by the ISP. Okay, students, so dial-up connections are extremely slow, and in most cases, it is replaced by a high-speed connection such as DSL or cable modem. So dial-up connectivity is very slow in nature. Next is DSL. DSL stands for digital subscriber line. It provides you the internet access by transmitting digital data over
wires of a local telephone networks. Digital subscriber line, it also requires wires connectivity. And how you can get internet access by transmitting digital data over wires over local telephone network. DSL network is delivered along with wired telephone service on the same telephone line. On the customer premises, a DSL filter removes the high frequency interference, enabling simultaneous use of the telephone and data transmission. For using a DSL connection, you need a DSL modem and a subscription. अगर आपको DSL का कनेक्शन लेना है तो इसके लिए आपको DSL मोडेम लेना पड़ेगा और एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. बेसिकली डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन uses the local telephone network over the telephone lines. Okay students, next is its transmission speed. Student, DSL transmission speed is high as comparison to dial-up. Both require wired connectivity. Next is cable internet access. Cable internet access is a form of broadband internet access that uses the cable television infrastructure. Cable internet access is a form of broadband internet access. It basically requires cable television infrastructure. जो केबल इंटरनेट एक्सेस होता है वो एक तरह का ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस होता है जो क्या रिक्वायर करता है, केबल टेलीविज़न का इंफ्रास्ट्रक्चर. केबल इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडेड थ्रू एग्जिस्टिंग केबल टीवी नेटवर्क्स. दिस सिमिलर टू डीएसएल. ये भी हमने कहा केबल जो इंटरनेट एक्सेस होता है ये भी वायर्ड कनेक्टिविटी का यूज़ करता है और एक केबल के इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करता है. जैसे केबल टीवी का पूरा नेटवर्क होता है उसी की तरह ये वर्क करता है. दिस इज सिमिलर टू डीएसएल दैट इज प्रोवाइडेड ओवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन्स लाइन्स. Next is 3G. 3G stands for third generation, is a set of standards used for mobile devices and mobile telecommunication services and networks. जो 3G है बेसिकली ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है या मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए यूज़ होता है, नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है. हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस इज़ अ 3G मोबाइल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है दैट अलाउ हायर डाटा ट्रांसफ़र स्पीड. इसकी जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड है एज़ कंपेरिजन टू DSL एंड केबल इंटरनेट एक्सेस इसकी हायर होती है. If support for 3G is available on your mobile phone, you can subscribe to the 3G connectivity with your ISP in order to get a high-speed internet connection in your phone. So आजकल तो आपका 4G 5G भी आ गया है बट 3G जो हमारा है ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज़ किया गया था और मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए यूज़ होता था और इसकी हायर डाटा ट्रांसफ़र स्पीड थी. आप अपने मोबाइल के अंदर 3G कनेक्टिविटी अपने ISP से परचेज करके आप इंटरनेट कनेक्शन ले सकते थे. नेक्स्ट इज है वाईमैक्स. वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. इसकी फुल फॉर्म है ये वाईमैक्स की, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो बेसिकली डिज़ाइन किया गया था मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज़ एंड कंट्रीज़ इन अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस. ये एक लॉन्ग रेंज सिस्टम है जो कि कवर करता है किलोमीटर्स एंड इज टिपिकली यूज्ड वेयर DSL और केबल इंटरनेट एक्सेस कैन नॉट बी यूज. ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर DSL और केबल इंटरनेट एक्सेस पॉसिबल नहीं है. दिस कुड बी डिफ़िकल्टी इन रेइंग द केबल, जहाँ केबल का वर्क बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उन जगह यूज़ होता है ये. सो वाईमैक्स के अंदर सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. और इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है ये जो बेसिकली डिज़ाइन किया गया मोबाइल डिवाइसेस के लिए, मोबाइल कनेक्टिविटी इंटरनेट के लिए अक्रॉस सिटीज़ एंड कंट्रीज़. वाईमैक्स एक लॉन्ग रेंज सिस्टम है जो कुछ किलोमीटर्स को कवर करता है एंड ये टिपिकली यूज़ किया गया था जहाँ पर भी DSL और केबल इंटरनेट एक्सेस की जो कनेक्टिविटी थी वो पॉसिबल नहीं थी, जहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है केबल्स को होम या ऑफिस में कनेक्ट कर पाना, लोकेटेड इन रिमोट लोकेशन बट नीड एक्सेस टू द इंटरनेट. नेक्स्ट इज वाईफाई. वाईफाई इज़ अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी. वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फाइडेलिटी
सो एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करती है, जैसे कि कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं डाटा को वायरलेसली ओवर इंटरनेट और नेटवर्क। वायरलेस डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं इस पर इंक्लूड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस, वाईफाई डिवाइसेस सच एज माई पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, video game console can connect to a network resource such as internet through a device called the wireless access point. वाईफाई इज़ यूज वे केबल्स कैन नॉट बी रन। वाईफाई का वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर केबल्स रन नहीं करती, जैसे कि ऑल बिल्डिंग्स हैं, आउटडोर एरियाज हैं, टू प्रोवाइड नेटवर्क एंड इंटरनेट एक्सेस। वाईफाई कैन ऑल्सो बी यूज वे यूजर्स रिक्वायर मोबाइल कनेक्टिविटी। वाईफाई कनेक्टिविटी इज़ यूज इन होम एंड ऑफिसेस। वाईफाई कनेक्टिविटी का होम में या ऑफिस में यूज़ किया जाता है। होटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल कैंपस हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, इन सब जगह पर हमारा वाईफाई का यूज़ होता है। आजकल रेलवे स्टेशन पे भी यूज़ होता है, फ्री कनेक्टिविटी है। सो वाईफाई एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज़ करती है डाटा को एक्सचेंज करने के लिए ओवर टेलीफोन, मोबाइल्स, वीडियो स्मार्टफोन्स, वीडियो गेम कंसोल्स एक्सेट्रा। वाईफाई का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट रिक्वायर मोबाइल कनेक्टिविटी। आजकल होम, ऑफिसेस, होटल्स, कॉलेजेस, स्कूल कैंपस, कॉफ़ी शॉप, शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशन, एयरलाइंस, ये हर जगह पे यूज़ होता है आजकल वाईफाई का। नेक्स्ट है कि जो डाटा ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट पे, इसका क्या प्रोसीजर है कि कैसे हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है ओवर द इंटरनेट। सबसे पहले आपका जो डाटा होता है वो ब्रोकन अप हो जाता है बिट ऑफ सेम साइज पीसीस में, जिसको पैकेट्स बोलते हैं। जो भी हमारा डाटा है वो बिट्स की फॉर्म में, मतलब पैकेट्स की फॉर्म में वो हमारा डिवाइड हो जाता है। उसके बाद हेडर जो होता है वो ऐड हो जाता है टू ईच पैकेट। जितने ही पैकेट्स हमारे डिवाइड होते हैं उसके साथ हेडर अटैच हो जाता है जो बताता है कि ये डाटा कहाँ से आया है और इसको कहाँ तक जाना है और वेयर इट फिट्स विद द रेस्ट ऑफ द पैकेट्स। Each packet is sent from computer to computer until it finds the destination. जो हेडर हमारा होता है उस पर ये वो हर एक पैकेट के साथ अटैच होता है कि डाटा कहाँ से आया और इसको कहाँ तक जाना है। जब तक इसको ओरिजिनल पाथ नहीं मिलता, डेस्टिनेशन पाथ नहीं मिलता, तब तक वो पैकेट कंप्यूटर टू कंप्यूटर फाइंड आउट करता रहता है अपनी डेस्टिनेशन को। ईच कंप्यूटर ऑन दी वे डिसाइड्स वेयर नेक्स्ट टू सेंड द पैकेट। ऑल पैकेट्स मे नॉट टेक द सेम रूट। जरूरी नहीं है सभी पैकेट सेम रूट से जाएंगे। At the destination, the packets are examined. If any packets are missing or damaged, a message is sent asking for them to be resent. अगर कोई इनमें से मैसेज नहीं पहुंच पाया डेस्टिनेशन पे तो एक मैसेज सेंड किया जाता है जो रीसेंड के लिए होता है। दिस कंटिन्यूज अंटिल ऑल पैकेट्स हैव बीन रिसीव। जब तक सारे पैकेट्स रिसीव नहीं हो जाते तो ये प्रोसीजर चलता है। द पैकेट्स आर नाउ रीअसेंबल्ड इनटू द ओरिजिनल फॉर्म। ऑल इज डन इन सेकेंड्स। सो ये हमारा प्रोसीजर है कि कैसे हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट पे। सो फर्स्ट हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा जो डाटा है वो स्मॉल सेम साइज के पीसेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा डाटा हमारा, जिसको हम पैकेट्स बोलते हैं। उसके बाद एक हेडर अटैच हो जाता है हर एक पैकेट के आगे जो बताता है कि डाटा कहाँ से आया है और उसको कहाँ पे एंड होना है। और फिर वो जो पैकेट होता है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करता है, अपने डेस्टिनेशन को, जब तक कि उसको अपना डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता। एंड ऑल पैकेट, ज़रूरी नहीं है कि सभी पैकेट सेम रूट से जाते हैं। जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो हर एक पैकेट एग्जामिन्ड होता है। अगर उनमें से कोई भी पैकेट मिस होता है या डैमेज होता है तो एक रीसेंड का मैसेज जाता है। ये प्रोसीजर चलता रहता है जब तक हमें वो मैसेज नहीं मिल जाता। फॉर द कंप्लीशन the packets are now reassembled into the original form. All is done in seconds. So ये हमारा पूरा प्रोसीजर था कि how the data transfer over the internet. Okay students.